ہر سال سمندر کی گہرائی میں کئی جہاز غائب ہو جاتے ہیں۔ دنیا کا تیز ترین چور جو لاکھوں ڈالر کی چوری کر کے پرسرار طور پر غائب ہو گیا، اور کچھ ایسے جہاز بھی ہیں جو فضا میں ہی غائب ہو گئے۔ نہ آج تک ان جہازوں کے لوگ مل سکے اور نہ ہی ملبہ۔ دوستو، یہ دنیا پرسرار واقعات سے بھری پڑی ہے۔ آج کی ویڈیو میں کچھ ایسے ہی حیرت انگیز واقعات کے بارے میں بتایا جائے گا۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عریشہ، ویلکم ٹو ٹاپ اسٹوری۔ مسٹری آف دا میری سیلیسٹ شپ۔ یہ جہاز 150 سال پہلے بنا کسی کیپٹن اور عملے کے بغیر خالی اٹلانٹکا اوشین میں تیرتا ہوا ملا تھا۔ اس جہاز میں کیپٹن، اس کی بیوی، ایک بیٹی اور 8 جہاز کے ممبر تھے جو بعد میں غائب ہو گئے۔ آخر وہ بیچ سمندر کہاں گئے؟ یہ آج تک ایک سوال بنا ہوا ہے۔ یہ جہاز ایک مرچنٹ جہاز تھا، سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتا تھا۔ یہ 7 نومبر 1872 کو اپنے سفر کے لیے روانہ ہوا تھا۔ اس جہاز کو اٹلی سے نیو یارک کے لیے جانا تھا۔ یہ جہاز کچی شراب سے بھرا ہوا تھا۔ یہ جہاز 282 ٹن وزنی تھا اور بہت ہی شاندار خوبصورت جہازوں میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ اس جہاز پر کیپٹن بینجیم برج، اس کی بیوی سارا اور 2 سال کی بیٹی صوفیہ سوار تھی۔ ساتھ جہاز میں 8 افراد کا عملہ بھی موجود تھا۔ سفر شروع ہونے کے کچھ ہی دنوں کے بعد یہ جہاز پرسرار طور پر کہیں غائب ہو گیا، اور تقریباً 1.5 مہینے کے بعد 21 دسمبر 1872 کو یہ بحری جہاز ٹھیک حالت میں اٹلانٹکا اوشین میں کھڑا ملا۔ وہاں سے ایک کینیڈین شپ گزر رہا تھا۔ اس نے دور سے اس جہاز کو دیکھا۔ جیسے جیسے وہ جہاز کے قریب آئے، جہاز میں کسی کو نہ پایا۔ اندر جانے پر پتہ چلا کہ وہاں پر نہ تو کیپٹن، اس کا کرو اور نہ ہی اس کی بیوی اور بچی تھی۔ اور وہ لوگ کہاں چلے گئے، آج تک کوئی نہیں جان سکا۔ جہاز پر سب قیمتی سامان ویسے کا ویسے پڑا تھا اور کھانے پینے کی چیزیں بھی موجود تھیں۔ پھر وہ لوگ کہاں چلے گئے؟ حیرت کی بات یہ تھی کہ جہاز سے ایک لائف بوٹ بھی غائب تھی۔ کہا جاتا ہے شاید اس میں یہ سب لوگ بیٹھ کر چلے گئے۔ جہاز میں خرابی کی وجہ سے یہ لوگ ہو سکتا ہے چلے گئے ہوں، پر یہ کیا، جہاز تو بالکل ٹھیک تھا۔ پھر ماہرین نے ایک اور تجزیہ پیش کیا، شاید کہ سمندری ڈاکوؤں نے اس جہاز پر حملہ کیا ہو تو مار پیٹ کے دوران ان لوگوں کو مار دیا ہو، پر وہاں جہاز میں کچھ بھی ایسا نہیں تھا، کوئی ٹوٹ پھوٹ کے نشان نہیں تھے۔ جہاز میں ساری قیمتی چیزیں ویسے کی ویسے موجود تھیں۔ آخر کیا ہوا تھا ان لوگوں کے ساتھ؟ کہاں چلے گئے؟ یہ آج تک نہیں پتہ چل سکا۔ آپ کی سوچ کیا کہتی ہے؟ ان کے ساتھ کیا ہوا ہوگا؟ مسٹری کیس آف ڈی پی کوپر۔ آپ بات کرتے ہیں ایک ایسے چور کی جس کا کیس کوئی بھی آج تک حل نہیں کر سکا۔ جتنی بھی ایجنسیز تھیں اس میں ناکام ہو گئی تھی، FBI بھی ان میں شامل تھی۔ یہ واقعہ 24 نومبر 1971 کو امریکہ میں پیش آیا، جب امریکہ میں تھینکس گیونگ ڈے منایا جا رہا تھا۔ ایک آدمی جو کہ 35 سے 40 سال کی عمر کا تھا، کالا لمبا کوٹ پہنے ہوئے، ہاتھ میں بریف کیس پکڑے ہوئے، امریکہ کی نارتھ ویسٹ ایئر لائن میں سوار ہوا۔ اس ایئر لائن میں 36 افراد سوار تھے۔ فلائٹ کاؤنٹر کے مطابق اس آدمی نے اپنا نام ڈی پی کوپر بتایا۔ اس کی ہائٹ تقریباً 5 فٹ 10 انچ تھی۔ جب یہ شخص اپنی ٹکٹ کے مطابق اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھا تو اس نے ایئر ہوسٹس کو اپنے پاس بلایا اور اسے ایک کارڈ تھما دیا۔ ایئر ہوسٹس نے کارڈ کو بنا دیکھے بیگ میں رکھ دیا اور جہاز اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس آدمی نے جب دیکھا کہ اس کا دیا ہوا کارڈ ایئر ہوسٹس نے پڑھا ہی نہیں تو اس نے اسے دوبارہ اپنے پاس بلایا اور کہا، یہاں میرے پاس بیٹھو اور کارڈ پر دیکھو کیا لکھا ہے۔ اس نے جب کارڈ نکال کر دیکھا تو اس پر لکھا ہوا تھا کہ میرے پاس ایک بم ہے جو کہ اس بریف کیس میں ہے۔ میری ڈیمانڈز اگر پوری نہ کی گئیں تو میں تم سب کو اس بم سے اڑا دوں گا۔ ڈی پی کوپر نے ایئر ہوسٹس کو یقین دلانے کے لیے اپنا بیگ بھی کھول کر دکھایا تو اس میں سچ میں رنگ برنگی تاروں سے بھرا ہوا بم تھا۔ ایئر ہوسٹس نے جا کر یہ سب کچھ پائلٹ کو بتا دیا۔
एयर होस्टेस ने ये भी बताया कि डीपी कॉपर की डिमांड्स हैं उसको $2 लाख दिए जाएं, पैसे सारे $20 के नोट होने चाहिए और साथ 4 पैराशूट की भी डिमांड की गई। एयर होस्टेस ने मज़ीद ये भी बताया कि अगर उसकी बात ना मानी गई तो वो जहाज़ को तबाह कर देगा। पायलट विलियम ने ये सारी बात बहुत आराम से सुनी और नीचे अथॉरिटी को बताई कि हमारा जहाज़ हाई जैक हो चुका है और डीपी कॉपर की सारी डिमांड का भी बताया। अथॉरिटी ने बिना टाइम वेस्ट किए उसकी डिमांड को पूरा करने का फैसला किया और जहाज़ को एयरपोर्ट पर उतार लिया गया और कॉपर की जितनी भी डिमांड थी उन सबको पूरा किया गया। उसने सारे लोगों को जहाज़ से बाहर जाने दिया, लेकिन जहाज़ के क्रू को ना जाने दिया। कॉपर ने क्रू को जहाज़ को मेक्सिको की तरफ उड़ाने का कहा और उसकी ऊंचाई 10,000 फीट से नीचे रखने को कहा। कॉपर के पास एक मंसूबा था। जैसे ही जहाज़ ने उड़ान भरी, इसने अपने काले चश्मे उतार कर काले बैग में रखे और रात होते ही पैराशूट पहनकर जहाज़ के दूसरे दरवाजे से छलांग लगा दी। इस वाक़े के बाद वो आदमी कभी किसी को नहीं मिला। इसको ज़मीन खा गई कि आसमान, कभी पता नहीं चल सका। इस वाक़े से पूरी दुनिया हिल कर रह गई। यहाँ तक कि FBI ने भी इस केस को हल करने की बहुत कोशिश की, पर वो नाकाम रहे। इसको जो पैसे दिए गए थे उसकी सीरियस नंबर भी शाया की गई, पर वो पैसे आज तक इस्तेमाल में ही ना आ सके। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। 1980 में 9 साल बाद एक बच्चा बीच पर खेल रहा था। उसे एक पैकेट मिला जिसमें $5,000 मौजूद थे और ये पैसे वही थे जो डीपी कॉपर को दिए गए थे। किसी को पता नहीं कि ये पैसे कैसे इस बीच पर आए और डीपी कॉपर कहाँ गायब हो गया। कुछ अरसे बाद FBI को और बड़े बड़े अखबारात को बहुत से खत मिले जिसमें ये लिखा था, मैं ही डीपी कॉपर हूँ। लेकिन उन खतूत को लिखने वालों का भी आज तक पता नहीं चल सका और ये केस दुनिया के सबसे पुरस्कार केसों में से एक बन गया और आखिरकार 1916 में ये केस बंद कर दिया गया। अब बात करते हैं फ़्लाइट 19 डिसअपीयरेंस की। परवाज़ 19 से मुराद 5 अमेरिकी बहरिया TBF जंगी तैयारे हैं जो दिसंबर 1945 में फ्लोरिडा के साहिल से एक दिन की ट्रेनिंग की परवाज़ के दौरान गायब हो गए थे। अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा में समुद्री तकोन जो कि जनूबी मशरिक़ में जजीरों की सरजमीन में वाक़या है, ये दुनिया की बहुत ही पुरस्कार ज़मीन है। इस ज़मीन को ट्रायंगल डेविल भी कहा जाता है। ये वाक़या 5 दिसंबर 1945 में फ्लोरिडा के साहिल पर पेश आया। तकरीबन वहाँ के मकामी वक्त के मुताबिक 2:10 पर एयरबेस के 5 हवाई जहाज़ों ने उड़ान भरी और अपने मुकर्रर करदा रोड पर चक्कर लगाते रहे। इन 5 हवाई जहाज़ों को 120 मील की दूरी का फासला पूरा करके वापस आना था। जहाँ से इनको गुजरना था वो बरबूदा ट्रायंगल में आती है। वक्त गुजरता गया और तकरीबन 4 बजे उन 5 तैयारों में से एक तैयारे का पैगाम वसूल हुआ जिसमें पायलट कह रहा था, हमको कुछ पता नहीं चल रहा, हम कहाँ हैं। लगता है हम अपने रोड से हट चुके हैं। बहुत ही अजीबो गरीब सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। हमें ज़मीन नज़र नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है हर तरफ बस सफ़ेद बादल हैं। जब एयरबेस से पूछा गया आप कहाँ हैं, तो जवाब मिला, हम जगह का ठीक से तयन नहीं कर पा रहे। ऐसा लगता है हम फ़ज़ा में मौजूद हैं और गुम हो गए हैं। सूरज भी नज़र नहीं आ रहा है। इस पर एयरबेस की तरफ से जवाब मिलता है, आप सब मगरिब की सिमत की तरफ उड़ान जारी रखो। इस पर पायलट कहता है, मुझे नहीं पता मैं इस वक्त किस सिमत में हूँ और मगरिब सिमत किस तरफ है, नहीं पता चल रहा। हर तरफ बस बादल छा गए हैं और समुंदर भी कुछ अजीब नज़र आ रहा है। हमारा कंपास भी काम करना बिल्कुल छोड़ गया है। इसके बाद एयरबेस और पायलट का आपस में राब्ता टूट गया।
बाकी के जो 4 हवाई जहाज़ के पायलट थे वो भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल से दो चार थे। एक पायलट जिसका नाम स्टीवर्ट जॉर्ज था घबराई हुई आवाज़ में कह रहा था कि हमको पता नहीं हम कहाँ हैं। मुझे लगता है कि हम सब 225 दूर शमाल में शायद उड़ रहे हैं, सफ़ेद पानी में घूम रहे हैं। इसके बाद इसका राब्ता एयरबेस से टूट गया और जहाज़ हमेशा के लिए गुम हो गए। उसी शाम को खोए हुए त्यारों को ढूंढने के लिए एक और हवाई जहाज़ को भेजा गया जो कि शाम 7:30 पर रवाना हुआ। ये एक खास त्यारा था जो इमदादी कामों के इस्तेमाल में लाया जाता था। ये त्यारा पानी पर भी उतरने की सलाहियत रखता था। जब ये त्यारा उस जगह पहुंचा जहां वो 5 त्यारे गायब हो गए थे, इस त्यारे का भी हैरत अंगेज तौर पर राब्ता टूट गया और वो भी हमेशा के लिए गायब हो गया। उसी शाम फ़ज़ाई जहाज़ों और बहरिया ने मिलकर हर जगह उन त्यारों को तलाश किया पर कुछ भी हासिल ना हो सका। फिर कुछ बहुत ही अजीब हुआ कि एयरबेस को उन गुम हुए जहाज़ों में से एक जहाज़ का पैगाम वसूल हुआ जो कि इतने साफ से सुनाई तो नहीं दे रहा था। वो पैगाम था FT और पैगाम देने वाले की आवाज़ लड़खड़ा रही थी। ये FT क्या है, आप यही सोच रहे होंगे। FT एक कोड है जो फ्लाइट 19 का अमला ही इस्तेमाल करता था। इसका मतलब था कि कोई ऐसा था जो कुछ बताना चाह रहा था और जिंदा बच गया था, लेकिन कहाँ से ये पैगाम वसूल हो रहा था। और फिर ये पैगाम आना भी बंद हो गया। सुबह फिर से एक टीम बनाई गई जो इन गायब हुए जहाज़ों की तलाश में निकली, लेकिन वो फिर से नाकाम लौटे। माहिरीन की एक टीम भी बनाई गई पर वो भी किसी वजह को बयान करने से कासर रही। कहा जाता है उस जगह पर पहले भी बहुत से हवाई जहाज़ और बहरी जहाज़ गायब हुए हैं। वहाँ के मकामी लोगों का कहना है कि ये एक पुरसरार जगह है और समुंदर के दरमियान पानी के अंदर अजीब धुंध सी छा जाती है जो बाद में पानी की सूरत इख्तियार कर लेती है। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि वहाँ एलियन की सरजमीन है या समुंदर के अंदर कुछ ऐसी कशिश है जो अपने अंदर चीज़ों को ले जाती है और बाद में कुछ नहीं मिलता। आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि आखिर क्या चीज़ उस जगह पर मौजूद है जो ऐसे वाक़यात होते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।